નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેટીવી ન્યૂઝના એક વિશેષ રજૂઆતમાં હું કુમાર બારોટ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આપણે કહેવતો ઘણી સાંભળી છે કે મન હોય તો માળવે જવાય, કઠોર પરિશ્રમનો કોઈ વિકલ્પ નથી, અડગ મનના માનવીને હિમાલય પણ નડતો નથી. આ જે બધી જ કહેવતો છે તે કહેવત એ લોકો માટે છે કે જેઓ સખત પરિશ્રમ કરે છે, હાર્ડવર્ક કરે છે અને છેવટે સક્સેસ મેળવે છે. દર્શક મિત્રો, તાજેતરમાં જ નવેમ્બર 2022ની જે બેચ છે તેનું રિઝલ્ટ આવ્યું અને ગુજરાતના જે વિદ્યાર્થીઓ હતા તેમણે સીએમાં ટોપ 50માં પોતાનું નામ કર્યું. તો દર્શક મિત્રો, આજે કેટીવી ન્યૂઝ આ સીએમાં ટોપ 50માં રહેલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમાંથી કેટલાક વિદ્યાર્થીઓનો ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહી છે. તો ચાલો આપણે તેમની પાસેથી જાણીએ કે તેમની સક્સેસનો શું મંત્ર છે. કારણ કે જે લોકો અત્યારે સીએની તૈયારી કરી રહ્યા છે, જેમને સીએ થવું છે, તે દરેક માટે આમનો જે સક્સેસ મંત્ર છે, કેવી રીતે તેઓ મહેનત કરતા હતા, કેવી રીતે પોતાની માટે સમય કાઢતા હતા, આ બધાની વાત તમારા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડશે. તો દર્શક મિત્રો, ચાલો આજે આપણે આ વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ ટોપર્સ થયા છે, ટોપ ઓફ ધ ટોપ કહી શકાય, તેમના સક્સેસ મંત્ર વિશે વાત કરીશું. તો અત્યારે અમારી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે વેદાંત ક્ષત્રિય, ભાવિકા શારડા, યશ વશિષ્ઠ અને અર્પિતા શર્મા. તો આ ચારેય જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમણે સીએમાં ટોપ 50માં ઇન્ડિયા લેવલ પર પોતાનું નામ કર્યું છે. તો ચાલો આ ચારેય સાથે આજે હવે આપણે ગુફ્તગુ કરીશું. સૌથી પહેલાં હું વેદાંત પાસે આવીશ કે વેદાંત, સૌથી પહેલાં તો આપ સૌને કેટીવી ન્યૂઝ તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. જી વેદાંત, સૌથી પહેલાં તો આપ એ કહો કે સીએની ક્યારે તમારા મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે તમારે સીએ થવું છે? તો સર હું કહેવા ઈચ્છું છું કે આફ્ટર 12th મને ખબર નહોતી કે મને કઈ ફિલ્ડમાં જવું છે. જી. હું પોતે ક્લુલેસ હતો, બટ મારા પપ્પાએ કીધું કે ભાઈ તું કંઈ તો કર જીવનમાં. મારા પપ્પાનું તો બિઝનેસ હતું, મારું પ્લાન તો હતું કે મને બિઝનેસ પર જ બેસવાનું છે, તો હું બીકોમ કરી લઈશ અને પછી બિઝનેસ પર બેસી જઈશ. મારા પપ્પાએ કીધું કે 12thમાં સારા માર્ક્સ આવ્યા છે અને જીવનમાં તું કંઈ તો કર, તું આગળ આ પ્રોગ્રેસને કન્ટિન્યુ રાખ. અને ત્યારે મેં વિચાર્યું કે મને સીએ કરવું છે. બિલકુલ, બહુ જ સુંદર વાત. જીવનમાં કંઈક તો કર. જ્યારે ફાધર આવું કહે ને ત્યારે સમજવાનું કે એમનો દીકરો જે છે ને ભણવામાં કદાચ મારા જેવો હશે. તેની પાસે ભાવિકા પાસે આવીશ કે ભાવિકા, તમને ક્યારે લાગ્યું कि તમારે सीए करવું છે? आपको कब लगा कि आपको सीए करना है? 12th के बाद मेरे मार्क्स आए एंड मैंने कॉमर्स ही यही सोच के लिया था कि अगर मेरे को कॉमर्स लेना है तो मैं सीए करूँगी, क्योंकि ये मेरी पापा की भी इच्छा थी. साथ ही साथ सीए एज अ प्रोफेशन मेरे को पहले से ही पता था कि बहुत ही नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड मेरे को हमेशा से ऐसा था कि नॉलेज जो है बहुत ही पावरफुल वेपन होता है. इसलिए मैंने सिर्फ मतलब मेन इंटेंशन तो ये था टू ग्रैब जितना ज़्यादा नॉलेज में ग्रैब कर सकूँ उतना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने सीए ज्वाइन किया. બિલકુલ. યશ વશિષ્ઠ, શું કહેશો કે તમે સીએ શું કામ પસંદ, ક્યારે વિચાર આવે? સૌથી પહેલા તો વિચાર ક્યારે આવે કે ભાઈ મારે સીએ થવું છે? હું જ્યારે 7th સ્ટાન્ડર્ડમાં હતો ત્યારે મને એવું લાગતું હતું કે મને સાયન્સમાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ તો છે નહીં, તો કોમર્સ હું લઈશ. તો કોમર્સમાં જે એક સારી જે ડિગ્રી છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે અને મારા અંકલ પણ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે, તો એમનાથી હું ઇન્સ્પાયર થયું છે અને મેં 7th સ્ટાન્ડર્ડમાં ડિસાઇડ કર્યું હતું કે 12th પછી હું સીએ કરીશ. બિલકુલ. અર્પિતા પાસે આવીએ, કારણ કે જે રીતે કહી શકાય ને કે એક પછી એક એ લોકો પોતાના રાઝ ખોલી રહ્યા છે કે શા માટે એ લોકોએ અને ક્યારથી ખરેખર તો सीए ની પસંદગી કરી. અર્પિતા, क्या कहोगे आप? सीए का विचार आपके मन में कब से आया? जब 10th क्लियर करने के बाद जब फील्ड डिसाइड करनी होती है कि आपको कॉमर्स लेना है या साइंस, फिर मेरे पापा ने मुझे बताया कि कॉमर्स लोगे तो आप उसमें डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो बट उसमें सीए सबसे अच्छा ऑप्शन है. एंड 11th-12th में टीचर्स ने भी काफ़ी इसके बारे में बताया, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे सीए ही करना है. બિલકુલ. હવે આપણે એ વાત પર આવીએ કે ખરેખર આ લોકોએ સીએ થવું છે તે તો ઘણા વખત પહેલાં વિચારી રાખ્યું. કદાચ યશે તો 7મા ધોરણથી જ વિચારી રાખ્યું. હું વેદાંત પાસે આવીશ કે હવે
સીએ થવા માટેની જે આખી પ્રોસેસ છે ને તે અમારે સમજવી છે વેદાંત, કે સૌથી પહેલાં જો કોઈ વ્યક્તિને સીએ કરવું છે, કારણ કે ઘણા દર્શક મિત્રો હશે તેમાંથી ઘણા લોકોને સીએ કરવાની ઈચ્છા હશે, સીએ કરવા માટે સૌથી પહેલું સ્ટેપ શું હોય છે, કેવી રીતે કઈ વસ્તુને એપ્રોચ કરવાની, ત્યાંથી લઈને એક્ઝામ સુધીની આખી પ્રોસેસ કેવી હોય છે તે ટૂંકમાં સમજાવો. વેલ તો સર આફ્ટર 12 શું થાય છે, સીએમાં 3 લેવલ્સ હોય છે. પહેલું લેવલ હોય છે એ સીએ ફાઉન્ડેશન. પહેલા સીપીટી હતું, પણ સીપીટી એ લોકોએ હટાવી દીધું છે અત્યારે સીએ ફાઉન્ડેશન છે. અને એના પછી સીએ ઇન્ટર. સીએ ફાઉન્ડેશન જે હોય છે ને એમાં બેઝિક્સ તમારા ટેસ્ટ થાય છે, એ એન્ટ્રન્સ લેવલ ટેસ્ટ હોય છે સોર્ટ ઓફ. મતલબ કે જે અમારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ને એ લોકો એ જ ટેસ્ટ કરે છે કે આ છોકરાને સપોઝ એને જે 11-12માં વાંચ્યું છે એની સારી ઘણી નોલેજ છે કે નહીં, કે આ કોર્સમાં એન્ટ્રી લઈ શકે છે કે નહીં. એમાં 11-12 ના અકાઉન્ટ્સના બેઝિક્સ અને 8-9-10 મેથ્સ કાં તો સ્ટેટિસ્ટિક્સના બેઝિક્સ એ બધા ટેસ્ટ એ લોકો કરે છે. અને એના પછી સીએ ઇન્ટર હોય છે એ સેકન્ડ લેવલ. એમાં જે હોય છે ને એમાં 8 સબ્જેક્ટ હોય છે કુલ મિલાવીને. અને એ જે સીએ નું કામ હોય છે ને, જે ટેક્સ થઈ ગયું, ઓડિટ થઈ ગયું, એ બધા સબ્જેક્ટ્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન સોર્ટ ઓફ. મતલબ એમાં ડીપ તો હોય છે બટ ઇન્ટ્રોડક્શન, જો છોકરો પહેલી વાર વાંચી રહ્યો છે ટેક્સ તો એને કેવી રીતના ટેક્સ મતલબ શું હોય છે એ બધું સમજાવવામાં આવે છે એ લેવલ પર. અને પછી એના પછી 3 વર્ષની આર્ટિકલશીપ હોય છે. અત્યારે એ લોકો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નવી સ્કીમ લાવી રહી છે, એમાં પ્રપોઝ છે કે 3 વર્ષની આર્ટિકલશીપના બદલે એ લોકો 2 વર્ષ રાખશે. અને પછી તમારી 3 વર્ષની આર્ટિકલશીપ પછી એમાં 2.5 વર્ષ પતી ગયા અને પછી 6 મહિનાની સ્ટડી લીવ મળે છે અને પછી સીએ ફાઇનલની એક્ઝામ હોય છે તમારી. બિલકુલ. તો બહુ જ સરસ રીતે તમે આખી જે છે તે प्रोसेस समझावी. भाविका पास आविश. भाविका, सीए फाउंडेशन जिनको करना है, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेप है आपका जो सीए फाउंडेशन का होता है, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन से सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है? वैसे तो 4 पेपर होते हैं जी. सबसे पहला अकाउंट्स होता है, दूसरा होता है लॉ और काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन. थर्ड Okay. जो होता है वो होता है लॉ. एंड लास्ट पेपर जो था वो कौन सा था? कोई भी कह दो. यस, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स. ओके, Economics. चलो. 4 पेपर हो जो. या ओके 4 जी, पेपर, बताइए. जिसमें से 4th इकोनॉमिक्स था. जी. जिसको सीए फाउंडेशन के लिए जाना हो, आई गेस 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के बाद ही यू कैन रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन. तो अच्छा. सपोज आपका मार्च में आया है 12th का रिजल्ट, रिजल्ट, बिल्कुल. तो आप नवंबर अटेम्प्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, तो आफ्टर 12th सीधा आप सीए फाउंडेशन को अप्रोच या. कर सकते हैं. अच्छा, ये सीए जो टोटल जो उसकी लेंथ होती है, હું યશ પાસે આવીશ. યશ, જે સીએ નો જે ટોટલ જે લેન્થ હોય છે, આજે આખો જે કોર્સ હોય છે તે કેટલા સમયનો હોય છે? નોર્મલી સીએ નું કોર્સ 4.5 યર્સમાં થઈ જાય છે, પણ તમારા અટેમ્પ્ટ લાગ્યા હોય એ 12th પછીની વાત છે? 12 પછી 4.5 યર્સમાં ઓકે, કમ્પ્લીટ 12th પછી 4.5 યર્સ હોય છે. અને કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ માટે પણ સેમ? ના, કોમર્સ ગ્રેજ્યુએટ માટે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી છે. એમાં Okay. એવું છે કે એ લોકો અગર બીકોમ કમ્પ્લીટ કરી લે તો જી. એ લોકો ડાયરેક્ટ આર્ટિકલશિપ સ્ટાર્ટ કરી શકે છે. અચ્છા, આર્ટિકલશિપ એટલે એમાં કેટલા વર્ષ ઓછા થઈ જાય? એમાં 1.5 યર્સ ઓછા થઈ જાય પછી ડાયરેક્ટ 1.5 યર્સ ઓછા થાય. Yeah. તો 4.5 માંથી 1.5 યર્સ ઓછા થઈ જાય. બરાબર છે. ઓકે, સો હવે તમે 12 પછીની જે વાત કરતા હતા તે કરો. જી. 12 પછી જી. 4.5 યર્સ લાગે જ છે. જી. ફાઉન્ડેશનમાં તમે 12 પછી ડાયરેક્ટલી રજીસ્ટર કરી શકો છો. એકવાર તમારું ફાઉન્ડેશન થઈ ગયું એના પછી 9 મંથ્સની કમ્પલસરી સ્ટડી કરવા પછી તમે ઇન્ટરમીડિયેટની એક્ઝામ આપી શકો છો. ઇન્ટરમીડિયેટની એક્ઝામ પતી જાય પછી ડાયરેક્ટલી તમારી આર્ટિકલશિપ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. 3 વર્ષની આર્ટિકલશિપ હોય. આર્ટિકલશિપ 2.5 યર્સની થઈ જાય તો તમને લીવ મળી જાય એક્ઝામ માટે, પછી તમે એક્ઝામ આપી શકો છો સીએ ફાઇનલની. બિલકુલ. અર્પિતા પાસે આવીશ. અર્પિતા, जो बात કરવામાં આવે કે भाई ये जो पूरा हमने देखा कि भाई ये फाउंडेशन की बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बताया, बिजनेस कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स है और दूसरे भी 2 सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बताया. इन 4 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए? एज ए स्टूडेंट आप 12th के बाद जब सीए डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस ऑलमोस्ट सब्जेक्ट आ जाते हैं, लाइक अकाउंट आ जाता है 12th में, वो एडवांस लेवल का थोड़ा अलग रहता है. बट आपको लॉ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज लॉ उतना नहीं बताया जाता है स्कूल्स में, इसलिए.
जी ठीक है। तो अच्छा, ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाली बात हुई, मैं वेदांत के पास आऊंगा। वेदांत, બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશનનો જે સબ્જેક્ટ છે તે કેટલો મહત્વનો છે તમારા કરિયર માટે? वेल तो सर मैं थोड़ा हिंदी में बोलना चाहूँगा इसके रिगार्डिंग। सर कम्युनिकेशन मतलब कोई भी आप फील्ड में जाओ, वेदर इट इज सीए और प्रोबेबली एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इज द मतलब सोल इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप कम्युनिकेशन, आपके स्किल्स अच्छे होंगे तो आप करियर में तरक्की तो कर सकते हो। ठीक है, सीए में हम लोग को सारी नॉलेज देता है, लाइक टैक्स, ऑडिट, जो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू डू आवर वर्क। बट अगर सपोज हमको काम करवाना है किसी से, मतलब हमारा जूनियर हो गया, हमको अपने बॉस से भी सपोज कोऑर्डिनेट करना है, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ बिगर रोल एंड वही ये हमको ये सब्जेक्ट में सिखाया जाता है एंड देयरफॉर दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, तो ये जो आपने बोला कि कम्युनिकेशन स्किल वाली जो आपने बात बताई, तो वो कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस स्किल पर्टिकुलरली जो बिजनेस हाउ टू, वो जो आपका है पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है, तो वो सिर्फ फर्स्ट ईयर में क्यों लास्ट ईयर तक वो एक्चुअली आपको नहीं लगता कि लास्ट ईयर के बाद उसकी ज्यादा जरूरत है? सर एक्चुअली में कैसा होता है कि जो सीए में है ना, वो लोग सारी फील्ड्स का नॉलेज, जैसे कि इनिशियली बच्चा आफ्टर 12th एनरोल हुआ, ठीक है, 12th में भी हमें इंग्लिश करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें भी हमें कम्युनिकेशन के बारे में पूरा बताया जाता है, तो उसका नॉलेज बच्चे को ऑलरेडी होता है 11th-12th में। ठीक है, नाउ इफ सपोज उसको पहले लेवल पे ही हमने कम्युनिकेशन और टैक्स और ऑडिट सिखा दिया ना, तो वो देख के थोड़ा मतलब डर जाएगा कि ठीक है टैक्स ऑडिट है, तो इनिशियल लेवल पे कम्युनिकेशन का नॉलेज बहुत ही अच्छा है, बट लेटर स्टेज पे बच्चा सीख जाता है धीरे धीरे, जैसे कि आर्टिकलशिप कर रहा है तो साथ में उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है कि कम्युनिकेट में को कैसे करना है, तो इसलिए लेटर स्टेज पे कम्युनिकेशन का एम्फेसिस दिया है, बट बहुत कम दिया है। हमारी 2 ट्रेनिंग्स भी होती है अपार्ट फ्रॉम मतलब ये जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज एडवांस आईटी एंड एमसीएस, एंड इंटर लेवल पे भी 2 ट्रेनिंग्स होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओरिएंटेशन कोर्स। उस पर भी हमें सिखाया जाता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन अ पर्टिकुलर मीटिंग और समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। अच्छा भाविका, ये जो इकोनॉमिक्स वाले आपने सब्जेक्ट की बात की, हम इसके बाद और भी बहुत सारी बातें करनी, इकोनॉमिक्स वाले जो सब्जेक्ट की आपने बात की, इंडियन इकोनॉमी और ये पर्टिकुलरली आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट की इकोनॉमी, लोकल कॉरपोरेशन की इकोनॉमी, जो भी बजट वगैरह आते हैं उनके, तो ये इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है वो आपको उसमें कितना हेल्पफुल रहता है? वेल ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट भी ऐसा है जो 11th और 12th हमको पहले से ही नॉलेज होता ही है, सो इट्स जस्ट कि थोड़ा एडवांस लेवल पे सीए फाउंडेशन में हमको नॉलेज मिलता है। सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? जी, इकोनॉमिक्स आपको कितना हेल्पफुल रहता है इसमें? ओके, सो जी, ये बेसिकली ओवरऑल मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ रहता है, इसलिए सीए फाउंडेशन में इंक्लूड किया जाता है। ओवरऑल ब्रीफिंग इज इनफ फॉर इन अ सीए प्रोफेशन, तो वो ही सफिशिएंट रहता है। ઓકે, યશ પાસે હું આવીશ। યશ, તમને જે શરૂઆતમાં આપણે જે કરિયર ઓરિએન્ટેડ જે છોકરા, જે સ્ટુડન્ટ્સ અત્યારે ટીવી જોઈ રહ્યા છે તેમના માટેની ચર્ચા કરીશું કે તમને અત્યારે એવો કયો સબ્જેક્ટ લાગે છે કે જેની પર સ્ટુડન્ટે ખાસ કરીને, અચ્છા સીએની કોઈ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ હોય છે ખરી? હા, સીએ ફાઉન્ડેશન એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ જ છે। ઓકે, સીએ ફાઉન્ડેશન એ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ છે। ઓકે, તો સીએ ફાઉન્ડેશનમાં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં જે 4 સબ્જેક્ટ આપ્યા છે એમાં મેક્સિમમ કયા સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે ફરી એકવાર ચર્ચા કરીએ તો શેની પર જે સ્ટુડન્ટ અત્યારે ટીવી જોઈ રહ્યા છે તેના માટે તમે શું સલાહ આપશો? શેની પર વધારે ફોકસ કરવા જેવું છે કે જે આગળ જતા એમને વધારે કામમાં આવે અથવા તો વધારે હાર્ડ છે આ સબ્જેક્ટ? એવું છે કે સીએ ફાઉન્ડેશનમાં 4 સબ્જેક્ટ છે, જેમાંથી અકાઉન્ટ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ મેથ્સ વાળું પેપર 3 અને ઇકોનોમિક્સ, એ બધું એવું છે કે રિપીટેડ છે, 11th-12thમાં હોય જ છે, તો એના ઉપર સારું કમાન્ડ છે સ્ટુડન્ટનું। પણ એક એવું સબ્જેક્ટ છે બિઝનેસ લો, એના ઉપર કોઈ કમાન્ડ હોતું નથી સ્ટુડન્ટનું, કેમ કે એ ઓલ ટુગેધર ન્યૂ સબ્જેક્ટ છે, તો અકોર્ડિંગ ટુ મી એના ઉપર થોડું સારું। બિઝનેસ લો એટલે આ જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ ને બિઝનેસ ની એની જ આખી વાત હોય છે। અચ્છા, તો જેણે એલએલબી કર્યું એને વધારે સારી રીતે સમજી શકે કે એવું કોઈ જરૂરી નથી? વેલ, મને એલએલબી નું વધારે નોલેજ તો નથી, કારણ કે લો વર્ડ જ્યારે આવે છે ત્યારે આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ જે એડવોકેટ હોય ને એ લોકો જે એલએલબી સ્ટડી કરે છે, હવે એ લોકોને આનો વધારે નોલેજ હોય કે પછી સીએ માં જે 12th પછીનો છોકરો પણ આને સારી રીતે સ્ટડી કરી શકે છે? 12th પછીનો જો છોકરો હોય છે એને લો ની કોઈ નોલેજ જ નથી હોતી ને। બિલકુલ, એલએલબી વાળો જે હોય એને લો નું, તો બિઝનેસ લો ની આપણે એ જ વાત કરી રહ્યા છીએ કે બિઝનેસ લો તો શું એમાં વધારે અઘરો પડે છે એવું તમારું કહેવું છે? યા, અકોર્ડિંગ ટુ મી અઘરો છે।
બિલકુલ બિલકુલ. અચ્છા યસ વેદાંત, તમે કંઈ કહેવા માંગો છો? સર હું આમાં આ કહેવા માંગુ છું કે બિઝનેસ લોઝમાં એકચ્યુઅલી શું હોય છે, તમને ઇન્ટરપ્રિટેશન બેઝિકલી Okay. 11th 12thમાં શું હોય છે કે તમને જે બુકમાં આપેલું છે તમે એ જ વાંચીને એ એક્ઝામમાં લખી દો તો તમને માર્ક્સ મળી જાય. બટ આઈસીઆઈ અમારી જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે દેટ ઇઝ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ, એ લોકોનું મેઇન ફોકસ શું છે કે જે છોકરો છે એમાં ઇન્ટરપ્રિટેશન સ્કિલ્સ ડેવલપ કરવી છે કે લો અમે વાંચીએ એને કેવી રીતના ઇન્ટરપ્રેટ કરવાનું અને એને કેવી રીતના રિયલ લાઈફમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું, અને એ માટે આ સબ્જેક્ટ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમને લોકોને બેઝિક શીખવાડે ઇન્ટરપ્રિટેશનના. એટલે અને એલએલબી જો કોઈએ કર્યું હોય તો એને ઓલરેડી ઇન્ટરપ્રિટેશન સ્કિલ્સ એના સ્ટ્રોંગ હોય Okay. તો એને ખાસી ઘણી Helpful થશે. ફાયદો પડે આ સબ્જેક્ટમાં. બિલકુલ બિલકુલ. અચ્છા અર્પિતા, તમારી પાસે આવીશ કે વાય સીએ, સીએ શું કામ? હવે આપણે થોડો सिलेबसમાંથી બહાર નીકળીને બીજી પણ કેટલીક વાતો કરીશું. अर्पिता, वाई सीए आपने क्यों चूज किया? सीए करने के बाद अपने को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. लाइक आप प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके आप अपने खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसमें आप ऑडिट कर सकते हैं, टैक्स के रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और भी चीज़ें. और आप जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप खुद का बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर चीज़ पढ़ाई जाती है तो हमको ऑलमोस्ट आइडिया आ जाता है कि अपने को फाइनेंस कितना चाहिए, हमको कितनी इक्विटी लगानी चाहिए इस बिजनेस में, और क्या स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए. तो हम बिजनेस भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके प्रैक्टिस भी अपने स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी बिग कॉर्पोरेट में ज्वाइन भी हो सकते हैं, और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो अब ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए वेदांत, वाई सीए, वाई यू हैव चूजन सी, क्यों आपने सीए को पसंद सर किया? एक्चुअली मैं मेरा पैशन तो कुछ और है, मतलब जी. स्पोर्ट्स में बहुत सारे बिल्कुल. जो स्पोर्ट्स है उसमें एक्सेल करना है, बट सीए जैसा प्लेटफॉर्म कोई भी चीज़ नहीं दे सकता. लाइक फॉर एग्जांपल इवन इफ मतलब मेरे को सपोज मैं स्पोर्ट्स अगर मैं अभी परस्यू करता हूँ और मेरे को लेटेस्ट से उसमें सक्सेस मिलता नहीं है, ठीक है इतना, तो आई हैव सीए एज अ बेस एंड मैं फिर आगे सीए में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ. मतलब मेरे दोनों जगह पाँव हो सकता है. आई कैन बी एक्टिव इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन सीए एज अ प्रोफेशन. तो सर मतलब करियर का एकदम स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए आई हैव चोजन सीए. ओके, वाई भाविका, वाई सीए? सीए की मैंने जैसे ही कहा कि ये बहुत नॉलेज प्रोवाइड करता है. सो जी. ड्यूरिंग द कोर्स पूरे 4.5 इयर्स में अगर आपका अटेम्प्ट हो तो जितना भी आपको वक्त लगा हो, जो आपका माइंड डेवलप होता है, सिर्फ एकेडमिकली नहीं कि आपको दुनिया का नॉलेज हो, बिजनेसेस का नॉलेज हो, बट जो आप इमोशनली और मेंटली भी डेवलप होते हो, कंसीडरिंग जो हमको कंसिस्टेंसी के साथ 12 या 14 घंटे पढ़ने रहते हैं. हमारा आर्टिकलशिप में भी हमको काम के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करनी रहती है. सो जो ग्रोथ रहता है ना एज अ पर्सन, वो बहुत अच्छा रहता है. आई कंसीडर इट कि वो अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाते हो. डेवलपमेंट आपको ज्यादा इसमें लग रहा है. यश, શું કહેશો? વાય સીએ? મને તો એવું છે કે સીએ તમને ફિનાન્શિયલ ઓટોનોમી આપે છે કે તમને શું કરવું છે, કે એવું હોઈ શકે કે અમે બીજું કંઈ કરીએ એમાં ફેલ થઈ જાય, પણ જી. તમે સીએ કર્યું હોય તો તમે તમારી પોતાની પ્રેક્ટિસ સ્ટાર્ટ કરી શકો છો, તમે બિલકુલ. જોબ કરી શકો છો, તમારી પાસે બહુ બધા અધર ઓપ્શન્સ અવેલેબલ છે. તો એ જ માઇન્ડમાં રાખીને મેં સીએ ચૂઝ કર્યું છે. બિલકુલ. હવે અર્પિતા, તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ. શરૂઆત તમારાથી વાય સીએ થી કરી હતી. જે સીએ કરે છે એમના માટે ગવર્મેન્ટ જોબ કેટલી અવેલેબલ હોય છે? गवर्नमेंट जॉब એટલે आप पीएसयू में अप्लाई कर सकते हैं. उसमें भी एज अ सीए वो लोग अपॉइंट करते हैं, लाइक फाइनेंस हेड के रूप में, और अकाउंट्स उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए. और दूसरा गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो बजट जब प्रिपेयर होता है तो उसके लिए टीम सीए लोग को वो सिलेक्ट करते हैं, बिल्कुल. लाइक जिसको लॉ में इंटरेस्ट हो, इंटरप्रिटेशन, लाइक इनकम टैक्स से रिलेटेड बजट में काफ़ी चीज़ें आती हैं, चेंजेस होते हैं. तो कहीं पे अमेंडमेंट की किसी प्रोविज़न में अमेंडमेंट की ज़रूरत है जिससे गवर्नमेंट का बेनिफिट हो सके, या सिटीजन्स के लिए भी कुछ बेनिफिट हो सके, तो वहाँ पे सीए हेल्पफुल होते हैं. तो गवर्नमेंट फील्ड में इतना
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस आंसर, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है लोगों के लिए સમજના, કારણ કે જ્યારે સીએ થવાય છે ત્યારે સામાન્ય રીતે લોકો એવું વિચારતા હોય છે કે આપણે પ્રાઇવેટ ફર્મ હોય અથવા તો કોઈ મોટી ફર્મ હોય એની સાથે એ લોકો જોડાઈને જોબ કરે, પરંતુ ગવર્મેન્ટમાં પણ સીએની બહુ જ સારી જે છે તે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ગવર્મેન્ટને પણ જ્યારે બજેટને અનુલક્ષીને જ્યારે વાત થતી હોય છે ત્યારે સીએ તેમને મદદ કરતા હોય છે અને ગવર્મેન્ટ તેમાં મદદ કરતી હોય છે. હવે સૌથી મહત્ત્વની વાત એ છે કે તમારી આજે આખી જર્ની રહી, જે સક્સેસની જર્નીની સૌથી પહેલાં હું વેદાંતથી શરૂ કરીશ. वेदांत, सेल्फ स्टडी और कोचिंग? सर तो मेरा प्रेफरेंस ज़्यादा टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी ही रहेगा. मतलब कोचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. सी मैं कोचिंग का मना ही नहीं कर रहा, बट कोचिंग का कैसा होता है कि आपको गाइड कर देंगे. लेटर से कि आप नए हो मतलब सीए कोर्स में, एंड आपको टैक्स और ऑडिट ये जो मतलब जो कोर सब्जेक्ट्स होता है और फाइनेंस लेटर से आपको उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है, मतलब आपने कभी भी पहले इनिशियली पढ़ा नहीं है. तो आप अगर कोचिंग में एनरोल कराओगे तो आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे होता है, ये कैसे आपको नोट्स भी दे देंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट एट दी एंड आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके एफर्ट्स, खुद के एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे. तो सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग बोथ इक्वली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग सीए एग्जाम्स. वेरी नाइस. भाविका, आपने किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया है, सेल्फ स्टडी और कोचिंग? जैसे कि 3 लेवल होते हैं सीए में, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल. हर एक 3 डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग आई प्रेफर. मेरे अकॉर्डिंग सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में आप कोचिंग कंसीडर कीजिए, रादर फिजिकल कोचिंग कंसीडर कीजिए कि आप ऑफलाइन जाके स्टडी कर रहे हैं. इससे आपको ज़्यादा आवर्स स्टडी के लिए बैठने में हेल्पफुल रहता है, क्योंकि 12th के बाद हर किसी की इतनी आदत नहीं होती कि वो इतने 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ने के लिए बैठ सकें. तो जब लोग साथ होते तो इट बिकम्स ईजी कि आप भी बैठे हो एंड आप उतने आवर्स की स्टडी कंप्लीट कर सकते. यस. एंड जहाँ बात मैं सीए फाइनल की करूँ तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आप सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहता है. और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग लेना चाहिए. इससे आपका क्या लर्निंग का जो टाइम लगेगा वो थोड़ा कम हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है. एंड लेक्चर्स में भी अगर आप ये आपके आर्टिकलशिप के आवर्स पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास फ्लेक्सिबल आर्टिकलशिप के आवर्स हो तो ऑफलाइन लेक्चर्स भी ले सकते हैं. एंड अगर आपके आवर्स इतने फ्लेक्सिबल नहीं, ज़्यादा देर के काम रहते हैं, तो वीडियो लेक्चर्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं. अच्छा भाविका, आपके हिसाब से कौन से सब्जेक्ट जो आपने बात करी कि जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कुछ के लिए कोचिंग करना पड़ता है, आप किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हो कि इसको सेल्फ स्टडी में रखो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके लिए तो कोचिंग ज़रूरी है? वैसे ये चीज़ सब्जेक्टिव ही रहती है लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा स्ट्रेंथ में मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कहूँ, बट वीकनेस में मतलब जिसमें मेरे को ज़्यादा वक्त लगता है वो थियोरी वाले सब्जेक्ट्स रहते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अगर मेरे को कहना हो कि कौन से में सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है जो थियोरी के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू करनी चाहिए, क्योंकि आपकी एक बार की रीडिंग भी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग भी आसान रहता है, एंड आपके दिमाग में रिटेन भी हो जाता है क्योंकि आपने खुद से वो चीज़ पढ़ी है. जहाँ बात कोचिंग की तो आप FR जैसे सब अकाउंटिंग जो है एंड SFM वगैरह के सब्जेक्ट्स आप कोचिंग से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका समय जो है टू कवर दैट सब्जेक्ट कम कर देता है. बिल्कुल. वशिष्ठ, જે SWOT એનાલિસિસ કહીએ ને આપણે પોતાનું, એમાં સૌથી પહેલા વાત કરીએ સેલ્ફ સ્ટડી और कोचिंग. वेल अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपको कोचिंग मैंडेटरी है, आपको लेने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपके कंसेप्ट्स वैसे क्लियर नहीं होंगे. बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं. कौन से सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल? क्योंकि सब जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जिनको अप्रोच करना है, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. अकॉर्डिंग टू मी कुछ ऐसे सब जैसे कि FR हो गया, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज अकाउंट हो गया, SFM हो गया. अब ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत सारे कंसेप्ट्स होते हैं, न्यूमरस. ऐसा नहीं कि एक कंसेप्ट है, हर एक चैप्टर में 100 50 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो अगर मैं इसे सेल्फ स्टडी से करना चाहूँगा तो ऐसा हो सकता है कि मुझे क्लियर ना हो, और फिर इंस्टीट्यूट क्या करता है उसे ही घुमा के पूछता है, और अगर उन्होंने ज़्यादा अंदर डीप में पूछ लिया तो मेरे से नहीं हो पाएगा वो. बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ऑडिटिंग हो गया, फिर कॉस्टिंग हो गया, जो कि नॉर्मली अभी थियोरी हो चुका है, तो उस चीज़ों को हम अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो सफिशिएंट है वो. ओके, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा. अर्पिता, आपके हिसाब से क्या रहेगा, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, इन दोनों में कौन से सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा एम्फेसाइज कौन से पार्ट में करोगे? ओके,
तो इनिशियली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टीचर्स की ज़रूरत तो पड़ती है, तो उसके लिए हमको कोचिंग लेना पड़ता है। बट एट द एंड जब आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है तो आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक आपको नंबर ऑफ मॉक के लिए मॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, तो वो तो सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी। एंड थियोरी भी आपको खुद से लर्न करनी पड़ेगी। तो दोनों आप प्रेफर कर सकते हो, कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी। ओके वेदांत, कोई खास स्टडी मटेरियल जैसे सबका एक अलग अलग रहता है, हम 12th स्टैंडर्ड से देखते हैं कि भाई इनकी बुक अच्छी है, उनकी हाँ। बुक अच्छी है, या नेट पे कुछ अच्छा अवेलेबल है, आप क्या कहते हो? कोई खास ऐसा कोई स्टडी मटेरियल है या आपको खुद को ही तैयार करना है या कहीं से तो आपको मिल सकता है? तो सर मैं तो इसमें यही बोलना चाहूंगा कि जो इंस्टीट्यूट हमारा जो प्रोवाइड करता है ना स्टडी मैट, दैट इज द बाइबल। मतलब वो आपने कर Okay. लिया तो आपको पास होने से तो एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता। एंड जी। इनकेस आपने बहुत ही अच्छी तरह कवर किया है, तो फिर यू कैन इवन सिक्योर अ रैंक। ठीक है, बट उसमें भी कैसा होता है, अब ये सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक हो जाता है, थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव हो जाता है कि किसी को मतलब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बेस्ट है, बट एट द एंड हमें जो सब्जेक्ट सारे कवर करने होते हैं ना बिफोर एग्जाम्स, वो हमें 1.5 डेज में कवर करने होता है। ठीक है, Okay. तो वो 1.5 डेज में अब इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो उन्होंने प्रिपेयर किया है ना मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में, दैट गोज अप टू 1000 पेजेस। एंड Okay. वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप 1.5 डेज में पूरे 1000 पेजेस आप फिर से गो थ्रू कर पाओ। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट्स में जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, फिर डायरेक्ट टैक्स दैट इज इनकम टैक्स, देन फिर उसके बाद अपना ऑडिट हो गया, फिर उसके बाद लॉ की बात करते हैं, तो उसमें मतलब अगर आप थर्ड पार्टी मटेरियल दैट मतलब जो इंस्टीट्यूट की जो Okay. स्टडी मटेरियल है उसके लैंग्वेज को मैच करता है, मतलब वैसा ही है बट थोड़ा सा कंसाइज वे में देके रखा है, तो आप Okay. वो रेफर कर सकते हो। वेरेस कोई छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग है, उसमें हमें इंस्टीट्यूट 2 बुक्स ही देता है एंड जिसका टोटल अराउंड समवेयर अराउंड 400 पेजेस होगा। एंड Okay. 400 पेजेस आप 1.5 डे में कर सकते हो, प्रोवाइडेड अपने पास में अच्छी मेहनत करके रखी है। करिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कॉस्टिंग बिल्कुल। जैसा सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसा सब्जेक्ट हो Okay. गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसा सब्जेक्ट हो गया, उसमें आप ये वाला मटेरियल रेफर मतलब थर्ड पार्टी अपने जो- इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर कर सकते रेफर कर हो। सकते फॉर हो। बाकी लेंदी जो सब्जेक्ट्स है जो 1.5 डेज में नहीं कवर हो सकते, जी। वो उसमें आप थर्ड पार्टी मटेरियल्स एक बार देख सकते हो। बट अगेन जी। ये आंसर थोड़ा सब्जेक्टिव है, किसी जी। को अगर बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल। लेंदी सब्जेक्ट सबका अपना अपना है, मैं वही सब पूछ हाँ। रहा हूँ। भाविका, आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से कुछ ऐसे मतलब पहले जब आप स्टडी करो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिटेल में पूरी अंडरस्टैंडिंग ले लो और उसी साथ साथ जो इम्पोर्टेंट हो वो मार्क करते जाओ। Okay. एंड ताकि एंड डे पे आप अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी ये रहती है कि 1.5 डेज में आप कैसे पूरा सिलेबस कवर करके जाओ, जो Okay. कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो जो Okay. वो क्रैक बिल्कुल। कर ले, इट्स दे कैन गेट थ्रू। वशिष्ठ, वेल मैं तो यही करता था, मैं तो स्टार्टिंग में सारा स्टडी मटेरियल पढ़ता ही था एक्सेप्ट 1 to 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के। मैंने इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट था वो मैंने एक बार तो रीड किया है, फिर मैंने उससे ट्राई किया है कि मैं किस तरीके से उसको समरी में कन्वर्ट करूं। मैं अपनी नोट्स में लिख देता था जिससे कि मैं लास्ट के 1.5 डेज में उसे कवर कर सकूं, और फिर वही बुक को मैं रिपीटेटिवली पढ़ता था। ऐसा नहीं कि फिर अपने ये बुक पढ़ ली, फिर वो दूसरी बुक पढ़ी, फिर थर्ड बुक पढ़ी, नहीं, वही बुक को मैंने 3 से 4 बार पढ़ा था। और फिर जो मेरी समरी नोट्स थी वो 1.5 डेज के बाद पहले पढ़ी थी, एंड दिस हैज हेल्प्ड मी। ओके। अर्पिता, स्टडी मटेरियल? यस, पहले तो स्टडी मटेरियल तो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक आपको रिफ़र करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए सबकी। फिर आपको 1.5 डेज़ के लिए डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या रिफ़र करना है, बिकॉज पूरा सिलेबस रिवाइज करना इन 1.5 डे इज़ अ बिग टास्क। सो आपको उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। आप सेल्फ नोट्स बना सकते हो, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी कुछ सब्जेक्ट में वो लोग चैप्टर्स के पीछे है ना पूरा समराइज करके देते हैं कि इस चैप्टर में ये था, लाइक हमारा आईडीटी में करके उन्होंने दिया था, तो आप उसको भी एज अ टूल यूज़ कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट की साइट पे भी वेब जो ICI की BOS करके एक साइट है, उस पर उन्होंने हर सब्जेक्ट के लिए एक समरी बनाई हुई है, तो आप लास्ट में वो भी रिफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ जी, आई बोलो। वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। जी। यश ने जैसे कि बोला कि उन्होंने कंटिन्यूअसली एक ही बुक से रिवाइज करा था, एंड मैं टोटली इस बात से अग्री करता हूँ कि हमें जो 6 महीने की स्टडी लीव मिलती है CA फाइनल एग्जाम्स के प्रायर, उसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 6 बुक 6 के 6 महीने कर रहे हो, रादर आप एक बुक 6 महीने करोगे ना तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू।
ओके, तो ये आपकी जो है वो शायद काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है। अच्छा वेदांत, अब आपके पास ही आता हूँ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप को टाइम मिलता था इसके लिए, कुछ करने का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए स्टडी में? स्टडी में ही तो सर टाइम तो ऐसा जो मतलब आर्टिकलशिप का फेज था ना, मतलब फाइनल स्टडी लीव में जाने से पहले उस टाइम तो मेरा ऑफिस रहता था 11 से मतलब 6, कभी सीजन में हो तो 8-9 बजे तक, ठीक है। तो उसमें तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाऊँ। मैं खाली जो अपना कोचिंग वगैरह है, लेक्चर्स वगैरह है, वो मैं अटेंड कर पाता था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं डे के 1 आवर और सो जितना रखता था कि मैं जो मेरे को कोचिंग में पढ़ाया हुआ है वो मैं एटलीस्ट एक बार घर पे अपने तरीके से पढ़ लूँ, बस उतना ही। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मुझे वो 2.5 ईयर्स में टाइम नहीं मिला था, वो जो 6 महीने हैं उसमें मैंने फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की। ओके, भाविका आपका कैसा रहा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो ऑनेस्टली कहूँ, मेरा जो स्टडी पैटर्न रहता है, मैं यही फोकस रखती हूँ कि मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी से रहे। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम जब मैंने सेल्फ स्टडी के लिए लिया था चीज़ें, तो उसमें ही मेरे को पूरा वक्त चला गया कि आई डेंट गेट कि मैं सेकेंड बार भी रिवाइज कर सकूँ। सेकेंड बार मेरा जस्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही था। बट जैसे कि आर्टिकलशिप पीरियड में रहते तो मेरे वर्किंग आवर्स तो बहुत एक्सट्रीम रहा करते थे। लाइक मेरा इवन ड्यूरिंग कोरोना जब वर्क फ्रॉम होम हुआ करता था तब तो मेरे लाइक 12 AM तक काम ही चलता रहता था। बट मेरा ये हमेशा कोशिश रहा करता था कि एटलीस्ट मैं कैसे भी करके मेरे लेक्चर्स जो है, मेरा एम यही था कि लेक्चर्स जो है मैं मेरे स्टडी लीव के पहले ख़त्म कर दूं, ताकि स्टडी लीव में मैं जाऊं तो मेरे को सेल्फ स्टडी पे ही मैं फोकस करूं। तो जो वशिष्ठ, बिल्कुल वशिष्ठ। ऐसा है कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी मैं सब्जेक्टिव हूं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जैसे जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगी है, बट कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स थे जिसको मैंने प्रैक्टिस लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, जस्ट रीड एंड गो। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मुझे एग्जाम के 1.5 डेज के पहले भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी है। जैसे कि SFM करके एक सब्जेक्ट है और उसमें मुझे एग्जाम के 1.5 डेज के पहले भी आई रिमेंबर कि मैंने 100 सम्स तो लिख के किए ही होंगे, भले शॉर्ट में किए होंगे, प्रेजेंटेशन के साथ नहीं किए होंगे, बट लिख के किए, क्योंकि अगर मैं लिखता नहीं तो मुझे वो क्रैक ही नहीं होता एग्जाम में। बिल्कुल। अर्पिता? यस, फॉर तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस करनी होती है और पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी बहुत सॉल्व करने पड़ते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मेरा यही अप्रोच था कि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की थी और थियोरी के लिए मैंने सेल्फ नोट प्रिपेयर की थी। तो उसके लिए भी ज़्यादा मुझे टाइम डिवोट करना पड़ता था, क्योंकि मेरा थियोरी वीकनेस है इसलिए। तो थियोरी के लिए मैंने ये किया था और प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए प्रैक्टिस की थी सम्स की। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब वेदांत के पास आऊँगा। वेदांत, अब अगर हम बात करें तो जब भी आपको कुछ अचीव करना होता है तो आपको थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हो। नो गेन विदाउट पेन, एज यू नो, ठीक है। तो आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया वेदांत भाई? पूरे सीए ये जो आपने रैंक लिया है उसमें सबसे पहला तो सबसे जो मुख्य सेक्रीफाइस है वो तो है कॉलेज लाइफ। कॉलेज मतलब ऐसा ही था, हमने ऐसा ही एनरोल कराया था जी कि जिसमें हमें अटेंडेंस कम लगे और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाए। दैट इज जो बीकॉम की डिग्री है वो हम खाली एग्जाम्स और खाली अटेंड करें तो हमारे पास आ जाए। तो कॉलेज लाइफ में इतना एंजॉय नहीं कर पाया था पर्सनली। इवन अब अगर मैं कॉलेज जाता भी था ना तो खाली लेक्चर्स अटेंड करके फिर उसका करना क्या था आपको, आप वो बता दो जरा। मेरे को एक्चुअली मैं कॉलेज लाइफ थोड़ा एंजॉय, मतलब जैसे कि हैंग आउट करते हैं दोस्त वगैरह सब हैंग आउट करते हैं। तुम मतलब इंस्टाग्राम पे तुम स्टोरीज भी देखते हो कि भाई जो मेरे दोस्त अभी कॉलेज कर रहे हैं वो लोग साथ में मतलब घूमने भी जाते हैं। लेट अस से कभी कोई मतलब लॉन्ग वीकेंड आया उसमें कोई घूमने चले गया, तो सर वो सब बहुत सेक्रीफाइसेस थे। आपने वो सब मिस किया, बराबर। वीकेंड में हमें घूमने भी नहीं जाने मिलता था। चलिए भाविका, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? सोशली कंप्लीटली खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। नो लाइफ एट ऑल, डिटैच्ड फ्रॉम नो लाइफ एट ऑल, इट्स जस्ट एवरीथिंग। यस, इट्स जस्ट स्टडीज और वर्क। रादर ये तक सैक्रिफाइस कर दिया था कि अगर थकान भी महसूस हो रही है तो खुद को वो भी महसूस ना करने दें। ओके, वेरी नाइस। वशिष्ठ? लास्ट के 4.5 मंथ से मुझे स्टडी लीव्स मिली थी, उसमें मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए। मतलब मैं आउटडोर गेम्स, जो मेरा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट वो 4.5 मंथ्स नथिंग, ना कोई फैमिली गैदरिंग्स, ना ही कुछ दिवाली सेलिब्रेशंस भी पूरी मिस आउट की, क्योंकि एग्ज़ाम जस्ट दिवाली के अगले दिन या 2-3 दिन में ही थे।
तो दिवाली सेलिब्रेशंस भी पूरा मिस किया मैंने। ओके, अर्पिता? सेम ऐसा ही रहता है सब सीए स्टूडेंट का, लाइक कॉलेज लाइफ भी हम सेक्रीफाइस करते हैं। एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले टीवी मूवीज़ ये सब भी हम कुछ भी नहीं देख पाते, और क्योंकि सिर्फ स्टडी दिखती है उस टाइम पे और एग्ज़ाम्स दिखता है बस। अच्छा, चलो ये हम सीए के सिलेबस से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। फैमिली सपोर्ट वेदांत किस तरीके का रहा आपका? तो सर मतलब फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीए मतलब एग्जाम्स क्लियर करने में। भले ही आप कितना भी मतलब पढ़ने में भी कितना अच्छे हो, एट दी एंड आपका मोरल सपोर्ट डाउन होने ही वाला है। मतलब जो वो आपकी जो आप लोग थक जाओगे एकदम सब्जेक्ट्स, क्योंकि सीए फाइनल जो है ना उसका ड्यूरेशन 3 इयर्स हो जाता है। एंड आपको ऐसा नहीं है कि आप लास्ट के 2 मंथ्स में आप स्टडीज उठाओ एंड फिर आपने पढ़ लिया एंड आपने फिर एग्जाम क्रैक कर लिया। आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स डालते ही रहना है। एंड लास्ट के जो 5 to 6 मंथ्स होता है उसमें तो आपको रेगुलरली 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही होता है। एंड एंड में ऐसा होता है आप कहीं ना कहीं तो बर्न आउट होने ही वाले हो कि भाई ये कब खत्म होगा, मतलब चले ही जा रहा है। तो एट दी एंड उस टाइम पे फैमिली का जो सपोर्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब वो लोग इमोशनली आपको कितना मतलब सपोर्ट करता है। इवन मैं ऐसा भी बोलूंगा, फ्रेंड्स आप टोटली डिटैच हो जाते हो? फ्रेंड्स तो सर मतलब ऐसा होता है कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल भी हो जाता है ना वो अराउंड सब सीए वाले ही होते हैं, तो वो लोग भी अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं। उन लोग के खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं, सबका दुख एक जैसा है। हाँ, तो सर वही डिस्कस करने में तो फिर मतलब तो आप सीए के अलावा बातें किसके साथ कर सकते हो, तो एट दी एंड फिर वो फैमिली ही काम आती है। नहीं डेफिनेटली, लेकिन हाँ। उसमें आप डिस्कस करके एक दूसरे हाँ। का जो दर्द है वो डेफिनेटली बांट सकते हो। हाँ। भाविका, फैमिली सपोर्ट के बारे में बताइए। सिर्फ फैमिली नहीं, आई थिंक कि फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत रहा है। आई थिंक जब जैसे कि वेदांत ने कहा कि एकदम बर्नड आउट ही हो जाते हैं, तो जैसे तो वो कम्युनिकेशन करने के लिए, बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि वो जो बर्डन है सिर्फ पढ़ाई का बर्डन बांट सको। डेफिनेटली आप किसी के साथ बातें शेयर करो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा हल्का फील होता है। वशिष्ठ, जैसा वेदांत ने कहा कि आप पढ़ने में कितने भी अच्छे हो बट आप लास्ट में बर्नआउट हो ही जाते हो, क्योंकि लास्ट 4.5 मंथ्स का आपका शेड्यूल ही ऐसा रहता है कि आपको 13 to 14 आवर्स तो पढ़ना ही है मिनिमम, उससे ज़्यादा भी होता है किसी किसी का जी। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो वो फैमिली है जो आपको वापस से मोटिवेट करती है। क्योंकि और तो आपका किसी के साथ इंटरेक्शन होता नहीं है, 1 or 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं बट पूरे सीए वाले फ्रेंड्स है ना। हाँ वही, बट वो भी उनके साथ अगर हम बात करेंगे एग्जाम के टाइम पे तो हम और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। मे बी हो सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वो ऐसी बातें कुछ सुनने को भी मिलती है कि नहीं यार ये नहीं हो। डेफिनेटली ये कॉलेज टाइम में होता है। डेफिनेटली। अर्पिता, फैमिली सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट तो बहुत ही रहता है, मतलब मम्मी पापा और भाई मेरे फैमिली में ये लोग हैं, तो इनका मेरे पे बहुत सपोर्ट रहा है। और है ना, लास्ट के मंथ में जब एग्ज़ाम नज़दीक थी तब मुझे हर चीज़ें मुझे मतलब स्टडी टेबल पे मिलती थी, डिनर तक। और जब मैं एकदम थक जाती थी ना, तो इन लोग मतलब मम्मी पापा से बात करके मेरा मन बहुत हल्का हो जाता था, मतलब बहुत रिलैक्स फील होता था। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं क्या लिखूंगी कल के पेपर में, पर उस टाइम मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल अर्पिता, आप बिल्कुल इमोशनल हो गए हो, लेकिन ये दिख रहा है, सही बात है। हमारी फैमिली अगर हमारे साथ है तो डेफिनेटली हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबके लिए आपकी हॉबीज क्या है? सबसे पहले वेदांत, आप तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हाँ बोलिए। तो सर हॉबीज में तो मेरा ऐसा है कि क्रिकेट सबसे पहले तो, देन फिर उसके बाद बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, लॉन टेनिस हो गया, बी इट फिर उसके बाद मूवीज देखना, टीवी शोज देखना। नहीं हॉबीज चलो ये सब ठीक है, खुद का कुछ इनर टैलेंट जिसको आप और डेवलप करना चाहते हो? तो सर मैं अभी करंटली तो लॉन टेनिस सीख रहा हूँ, तो और आगे मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उसमें और मैं डेवलप करना चाहूंगा खुद को लॉन टेनिस एज अ स्पोर्ट में। आपका पूरा आपका जो फोकस है वो स्पोर्ट्स पे है? ना सर ऐसा नहीं है, मतलब सीए आप कर रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अपार्ट फ्रॉम सीए
तो सर मतलब अभी ऐसा होता है कि जो ऑफिस टाइमिंग्स है ना, अभी 11 टू जैसे कि 8 रहता है ना ऑफिस टाइमिंग्स भी, जी। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा विंडो तो मिल ही जाता है, क्योंकि हमने मतलब आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई की है, तो हम अक्वेंट हो चुके हैं कि बिल्कुल। हम साथ में मतलब कुछ ना कुछ करें। तो जो बिल्कुल। अभी हमारे पास स्टडीज का बर्डन नहीं है क्योंकि सीए क्लियर हो चुका है, तो जो Very मीन वाइल जो टाइम मिलता है ना, जो स्पेयर टाइम, उसमें मैं अपनी हॉबीज अभी जैसे कि Definitely. स्पोर्ट्स खेलना और हाँ, वो ये सब वो आपने pursue कर बताया रहा हूँ। बिल्कुल। भाविका, वेल जैसे मैंने कहा, सोशली तो खुद को ब्लॉक कर ही देते 4.5 इयर्स में, तो हॉबीज एज सच इतनी कुछ अभी बची याद नहीं भी है। नहीं है कि क्या बिल्कुल। हॉबीज थी। बट अगर मैं कहूँ तो मुझे ट्रैवलिंग और लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है। बिल्कुल। अगर आप यही सोच के जवाब दो कि अगर सीए नहीं करते तो और आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब हॉबीज को क्या डेवलप कर सकते हैं। चलो वशिष्ठ। मेरे लिए तो आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. अगर मैं Okay. सीए नहीं कर रहा होता तो आई वुड हैव बिकम क्रिकेटर. आई वुड हैव एटलीस्ट ट्राई टू बिकम क्रिकेटर. मैं क्रिकेटर ही बनने की ट्राई करता अच्छा, क्रिकेटर ही बनना था। हाँ, वही। अच्छा, अब अर्पिता। मतलब मैं स्कूलिंग टाइम में ड्राइंग करना मुझे पसंद था, बट उसके बाद से तो सब छूट ही गया. मतलब जब से सीए ज्वाइन किया तब से कुछ भी नहीं है वैसा. बिल्कुल। किसी को म्यूजिक का शौक नहीं है आप में से? म्यूजिक सुनना मुझे सुनना पसंद है. पसंद सिर्फ सुनना सुनना पसंद पसंद है। है, हाँ। गाना गिटार बजाना नथिंग एल्स? हाँ सर, पर सीखना है ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी एक क्या बार। क्या क्या सीखना है? चलो तो वेदांत सर वेदांत गिटार या तो प्रोबेबली पियानो, मतलब दोनों गिटार में से। और प्रोबेबली पियानो। हाँ अच्छा भाविका, आपको चलो म्यूजिक में है तो वो बता सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ और आप बता सकते हैं? म्यूजिक सिर्फ सुनने का थोड़ा बहुत है, बाकी Okay. तो इतना नहीं है. ओके, नॉट तानसेन, ओनली कानसेन। वशिष्ठ सेम विद. से ओके। अर्पिता, यस, मुझे भी लिसनिंग पसंद है बस. पुराने गाने नए गाने कौन से गाने पसंद होते हैं आप लोगों को? मुझे भी पुराने ज़्यादा पसंद है और Okay. नए भी पसंद है. वशिष्ठ, आपको कौन से पसंद है? मुझे नए गाने पसंद है, स्पेशली अरिजीत सिंह के. अरिजीत। ओके, हु इज योर फेवरेट सिंगर भाविका? और म्यूजिक डायरेक्टर? मैं इतना रुचि नहीं रखती म्यूजिक में, बट अगर अच्छा। मैं के पॉप सुनती हूँ एक्चुअली. ओके। और वेदांत? यस यस। तो सर मेरा फेवरेट बैंड तो है ना कोल्ड प्ले है, मतलब वो इंग्लिश बैंड है। आपका and- कौन सा स्पोर्ट्स सिंगर है, स्पोर्ट्स म्यूजिक डायरेक्टर है? मैं आपको अब वो पूछूंगा क्योंकि सब कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड है आपका मैक्सिमम। बोलिए, बताइए, कोई बात नहीं। तो सर मेरा फेवरेट बैंड तो कोल्ड प्ले है, एंड Okay. देन मैं बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ईडीएम म्यूजिक भी मेरे को काफी पसंद है, जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक होता है ना. एंड बाकी बॉलीवुड में बात करने जाए ना तो अरिजीत सिंह इज द बेस्ट. ओके, बीटीएस किसको पसंद है? सबको? ना किसी को नहीं? ठीक है चलो. બહુ જ સુંદર કહેવાય કે ખરેખર સીએના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે કેટલું સેક્રિફાઈસ કરતા હોય છે પોતાના જીવનમાં જ્યારે તમારે કંઈક અચીવ કરવાનું હોય છે. અને ખરેખર આ એક બહુ જ મહત્વની વાત છે. જ્યારે આપણે આ ચારે જે સ્ટુડન્ટ છે, ખાસ કરીને હવે તો એ લોકોએ એક્ઝામ ક્લિયર કરી છે, ત્યારે એ લોકો પાસેથી આપણને ખરેખર ઘણું જાણવા મળ્યું, અને મને આશા છે કે અમારા દર્શક મિત્રોને પણ આમાંથી ઘણું જાણવા મળ્યું હશે. તો હું વેદાંત, ભાવિકા, યશ અને અર્પિતા, તમે ચારે અમારા સ્ટુડિયોમાં આવ્યા અને અમારા દર્શક મિત્રો માટે સીએ વિશે જે માર્ગદર્શન આપ્યું, જે માહિતી આપી, તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જોયું ને દર્શક મિત્રો, આપણે જે કહી શકાય કે જે ટોપર્સ હતા તેમની સાથે આજે આપણે વાત કરી. ટોપ 50માં આવવું તે કોઈ સહેલી વાત નથી, પરંતુ જો કહીએ કે ભાઈ તમારે તૈયારી કરવી હોય તો તમારો ફેમિલી સપોર્ટ, સેક્રિફાઈસ અને એની સાથે સાથે સખત પરિશ્રમ, કારણ કે તેનો કોઈ વિકલ્પ નથી હોતો. સ્માર્ટ વર્ક, હવે તો હાર્ડવર્કની સાથે સ્માર્ટ વર્કની પણ વાત થતી જ હોય છે. સ્માર્ટ વર્ક પણ તેટલું જ જરૂરી હોય છે. સ્માર્ટ વર્કમાં માણસ પોતાના જે વિકલ્પો છે તે શોધી જતો હોય છે. તો હાલ દર્શક મિત્રો, સક્સેસ મંત્રનો જે કાર્યક્રમ હતો તેમાં ટોપ ઓફ ધ ટોપ જે સ્ટુડન્ટ્સ હતા તેમનો આ કાર્યક્રમ હતો. તેમાં બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.